Hello and welcome to Royal Institute of Competition Udaipur, a premier institute in the stream of NEET, JEE, CUET and other science competitive exam. Guys, I'm Amit Pandey, senior faculty in physics, and I want you to meet my students, few of my students. Hey guys, how are you? फाइन, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से. Yes, sir. अब देखो मौसम भी चेंज हो रहा है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, होली आने वाली है. तो चलिए कुछ मैं क्वेश्चन आपसे वन बाय वन करूंगा. सो आई विल स्टार्ट विद अक्षिणी. अक्षिणी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? Udaipur, sir. उदयपुर. सो यू डिड योर 10th क्लास? From Central Academy, Udaipur only. ओके, दैट इज इन उदयपुर. ओके ओके. सो इज एवरीथिंग फाइन हियर? वैसे हमारा फर्ज बनता है ये पूछना, लेकिन मैं हाँ बेटी सब बढ़िया है. Everything is perfect here. एवरीथिंग इज परफेक्ट. ओके. टेल अस समथिंग अबाउट टीचिंग. The teaching here is very good, like excellent. Excellent. So means the teachers, they explain very well. Yes. Okay. About class notes, देखो teaching class notes, and these are very you can say basic requirements for a student who want to seek admission. So teaching class notes, they are perfect. The class notes are prim and proper. Like you'll find everything in like related to board and your competitive exams also. Means board classes are also there. So we also take care of board exam. Yes, sir. Also your competitive exams. Okay. So also tell us about like infrastructure. Is everything fine here? Infrastructure is like Classrooms. beyond perfect here. Beyond perfect. We have digital classrooms, Air conditioned. air conditioned classrooms. Yeah, because I'm also part of the system, and so I clean can tell. classrooms. Yes. Okay, okay. So, Mittal, your turn. So, you're basically from Udaipur? Yes, sir. Okay, so you did your 10th class? Maharshi Gautam Academy. Okay, that's in Udaipur. Yes, So, sir. you guys are, okay, how many of you are day scholars? Basic localite of Udaipur, born and brought up in Udaipur? Okay, most of them, okay. So, Mittal, tell us something about class tests. टेस्ट होते हैं बढ़िया एकदम. हाँ, वीकली टेस्ट होते हैं. अबाउट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बोथ कैसे? बोथ. वो सो अबाउट लाइक किसी एक पर्टिकुलर डे पे बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव? नो, संडे को ही होते हैं वैसे तो. और वन संडे ऑब्जेक्टिव एंड वन संडे सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं. मतलब संडे वीकली ये रहता है, एक संडे किसी दिन ऑब्जेक्टिव है, कभी सब्जेक्टिव टेस्ट है. सब्जेक्टिव टेस्ट बिकॉज ऑब्वियसली वी टेक केयर ऑफ बोर्ड एग्जाम आल्सो, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी आपकी अच्छी परसेंटेज रहे. एंड स्पेशली हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स? आई थिंक जेई के लिए कौन कौन है? मुझे ये बताओ बेटे कि 75 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट तो है. सो नक्षत्र, आपसे मैं ये पूछूंगा, इफ यू पास द माइक टू हिम. Nakshatra, why we just emphasize on 75% at least? Sure. What is the necessity of 75%? Sir, GE requires 75% to in seek admission in any- NIT, IIT. yes, sir. That means even if you qualify JEE exam, if your percentage are below 75%, that means you will not be given admission to those premier institutes. फिर आपके पास ट्रिपल IIT ऑप्शन होगा. तो मीन्स जेई में है तो भाई 75 तो मिनिमम चाहिए. तो इसके लिए हम लोग बोर्ड क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही हैं प्रॉपर? Yes, sir. बोर्ड के प्रॉपर नोट्स हो रहे हैं? Yes, sir. ऑल राइट. पार्थ, सो व्हाट अबाउट टेस्ट पेपर सॉल्यूशंस? मतलब टेस्ट पेपर सॉल्यूशन आपको कैसे मिलते हैं? जैसे कोई डाउट हो तो टेस्ट पेपर में कैसे आपको मिलता है ये? सर मतलब अगर कोई डाउट है तो हम है ना मंडे को डिस्कस कर सकते हैं. और हर मतलब एवरी मंडे पेपर सॉल्व होता है. every व्हाटएवर Monday इट इज paper गिवन solve टू होता संडे, इट Yes, इज sir. कंप्लीटली सॉल्यूशन टू एट मंडे. अच्छा, इवन सपोज यू हैव अ डाउट एंड यू कुडंट आस्क इन क्लास, तो हमारे पास एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस जो मेन क्लासेस के बाद कंडक्ट होती है. means there is doubt class facility. Suppose sir. if someone hesitate to ask question in the class, है ना, ऐसा कई बार होता है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स नहीं पूछ पाते हैं, तो you have your personal doubt classes there. Yes, sir. तो डाउट क्लासेस में वही फैकल्टीज हैं जो क्लास में पढ़ाते हैं या कोई डिफरेंट फैकल्टीज हैं? नो सर, सेम The same teacher who is teaching in the class, Teaching the the respective same subject, person solves your doubts. Yes, sir. Okay. Kapil. So Kapil, डिसिप्लिन, जैसे इन्होंने कहा कि डिसिप्लिन है, so डिसिप्लिन मींस अब ऐसा तो नहीं कि डिसिप्लिन आपको कोई पीट रहा है यहाँ पे? नो सर, नो सर. ऐसा तो नहीं है लाइक आपके फिजिक्स टीचर अमित नो सर, सर, नो सर. उनकी क्लास में आप डिसिप्लिन No, sir. नहीं है तो वो आपको डिसिप्लिन करने के लिए यूजिंग फोर्स, ऐसा तो कुछ नहीं है? नो सर, नो सर. सो यू गाइस आर डिसिप्लिन? यस सर. ओके. सर टीचर्स के साथ में हमारे यहाँ फ्रेंड्स के साथ जैसे रहते हैं वहाँ वैसे टीचर्स के साथ हम जैसे एक आप अपने घर पे बातें आप शेयर parents कर से सकते हैं discuss टीचर्स के करते हैं. साथ. मतलब कोई हेजिटेशन तो नहीं नो है? सर, नो सर. अच्छा, आई थिंक यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस? I am from Nagaur, Kuchaman city. बट आई थिंक ही इज फ्रॉम नागौर कुचामन सिटी. नागौर कुचामन सिटी. ओके ओके. सो यू लिव इन हॉस्टल? यस सर. ओके, टेल अस फ्यू थिंग्स अबाउट हॉस्टल. मैंने खाना खाया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. मैंने मन किया कि पैक करके ले जाऊं, लेकिन sir. मैंने ऐसा किया नहीं. तुम यहाँ रहते हो तो फिर कैसा लगा हॉस्टल? बढ़िया? सर एकदम बढ़िया.
कुछ बातें, जैसे अगर कोई ऐसे व्यूअर्स हमारे हैं जिनको यहाँ अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को हॉस्टल में रखना है, तो उनको कुछ बताना चाहो आप, मतलब कैसे एमिनिटीज हैं क्लास, जो अपने रूम में जितनी चीजें होनी चाहिए सब कुछ है? यस सर, एकदम बढ़िया एटमॉस्फेयर रहता है डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन, हॉस्टल डिसिप्लिन एकदम Yes, sir. परफेक्ट आपका? Yes, sir. स्टडी आवर्स आपके रहते हैं? यस सर। अच्छा, तो वहाँ पे रूम में जितनी भी फैसिलिटीज है, जैसे आपको बेड वगैरह है, जो भी है, आई थिंक अटैच वॉशरूम है जहाँ तक Yes, sir. Yes, sir. अटैच वॉशरूम है, तो दैट्स आल्सो यू कैन से कि एक तरह का एडवांटेज ही रहता है भी, Yes, आपको sir. रूम से बार निकलने का वो नहीं रहता। अच्छा, फूड वगैरह सर एकदम बढ़िया खाना। एकदम बढ़िया। तो मॉर्निंग में कितने बजे आप उठते हैं? सर मॉर्निंग में सुबह 5 बजे हमारे को वार्डन सर उठा देते हैं, बाद में 1 घंटा पढ़ के फिर हम इंस्टीट्यूट के लिए तैयार आ ठीक जाते है, तो यहाँ पे भी आई थिंक यू स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट एंड देन यू एंड इन द हैं। यस सर। हाँ, ये जरूरी है भाई, ब्रेकफास्ट पहले हो उसके बाद। Yes, तो मतलब हॉस्टल कंप्लीट है, एकदम फर्स्ट क्लास है? यस सर तो मैं एकदम। आपकी गारंटी के हिसाब से बोल सकता हूँ कि भाई अगर आप हॉस्टल में रहने का सोच रहे हैं, अपने बच्चे को हॉस्टल में रखना चाह रहे हैं, तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस। कंप्लीट गुरुकुल सिस्टम इसको कहा Yes, जा sir, सकता है एकदम भाई। बढ़िया। आपके स्कूल है, कोचिंग है, हॉस्टल है, बेसिक टू एवरीथिंग, हर छोटी छोटी फैसिलिटीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। कंप्लीटली वी शुड कॉल यू स्टूडेंट ओरिएंटेड, मतलब स्टूडेंट को ध्यान में रख के ही हमने सारी चीजों को इसके बारे में बात की है। ठीक है, पूजा आपसे बात करते हैं। इफ यू पास माइक टू हर। पूजा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, sir. My name is Pooja Jat. I am from Udaipur, and I studied my 10th class from Wisdom Public School. दैट इज इन उदयपुर। Yes, sir. ओके, सो इफ यू वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग अबाउट, यू थिंक आपको कैसा लगा? फाइन? Sir, discipline is 100 out of 100, and everything is fine. We have air conditioner in our classrooms and good faculty. They explain everything from basics. एक्सप्लेनेशन, यू नो, ईच एंड एवरी टॉपिक इट्स एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। Yes, sir. Okay, Basics so clear करवा देते हैं, बेसिक्स क्लियर होते हैं। and notes were excellent. भाई नोट्स तो जरूरी है, क्योंकि देखिए होता क्या है इसमें, नोट्स में आप सब जानते हैं बेटे, अब आपको मैंने कुछ पढ़ाया, किसी भी टीचर ने कुछ भी एक्सप्लेन किया, सो इफ यू गॉट वेरी गुड नोट्स, सो नोट्स आर लाइक फिनिशिंग नोट्स, कि आप नोट्स स्टार्ट करोगे पढ़ना एंड देन आपको ऐसा लगेगा कि टीचर्स आपको क्लास में जैसे पढ़ा रहे हैं वही उसी हिसाब से नोट्स है। तो नोट्स भी अपनी एक बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, ओवरऑल आप क्या सजेस्ट करेंगे सबको एडमिशन लेने के लिए? भी आपको अगर कुछ क्वालिटीज बतानी हो, देन व्हाई शुड अदर स्टूडेंट्स टेक एडमिशन हियर? Sir, discipline. डिसिप्लिन मस्ट है, दैट्स वेरी गुड। Faculty बहुत फैकल्टी बहुत अच्छी है, Excellent है। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। यस सर। ठीक है। हार्ड चीजें होती हैं उनके लिए ट्रिक्स भी बताते हैं टीचर्स। शॉर्ट ट्रिक्स आर देयर, और वो ट्रिक्स Yes. आई थिंक जरूरी भी हैं बेटे। ठीक है, गीतांजी मैं आपसे पूछूंगा बेटे, शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली दिस इंस्टीट्यूट इज बेसिकली फॉर जेई, नीट, सीयूईटी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Yes, sir. अब कंपटीशन जो आजकल का है, वो कंपटीशन ये है कि इट्स नॉट जस्ट गेटिंग द करेक्ट आंसर, गेटिंग द करेक्ट आंसर इन द मिनिमम टाइम। Yes. तो कम से कम टाइम में, अब ओब्वियसली आपको उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्लास में बताई जाती हैं। Yes, sir. मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। Yes, sir. ठीक है। उससे बहुत हेल्प भी मिलती है। हेल्प मिलती है इससे, Yes. ताकि क्या आप जल्दी से क्वेश्चन को क्लिक कर जाएं, Yes, sir. क्योंकि आप आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर Neat. नीट एग्जाम, और आपको पता होगा कि नीट एग्जाम है तो भाई क्वेश्चन को तो आपको फटाफट सॉल्व करना है। Yes, तो sir. उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको पूरी बताई जाती है, और आप लोग अच्छे से उसको पढ़ते भी हैं। Yes, sir. ठीक है, तो गीतांशी मुझे आप बताइए, आप 10th आपने कहाँ से किया? सर मैंने 10 दीप शिखर अपर प्राइमरी स्कूल। ओके, जो यहीं उदयपुर में है। Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है? सो यहाँ पे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, मतलब डाउट क्लास में भी कभी कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लास में ही सब कुछ समझ आ जाता क्लास है। में ही आपको कम्प्लीटली Yes, sir. ये चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं। ठीक है, लक्ष्य मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सपोज इफ यू मिस द क्लास, देखिए इट इज लाइफ, और यू नो एनीथिंग इज पॉसिबल, सडनली कुछ अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम हो जाए एंड सपोज यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, कुछ ऐसा दिक्कत आती है, तो क्या रहता है फिर इसके एवज में? क्या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए रहता है? यस सर। सर स्कूल डिस्पर्सल होने के बाद सर हम यहाँ पर रुक के सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। मतलब कोई लेक्चर आपको लगा कि नहीं समझ आया, या मान लो कोई आप अटेंड नहीं कर पाए, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हो। Yes, sir. मींस कि आपको लेक्चर मिस नहीं होगा। क्लासरूम इज कंप्लीटली डिजिटल सिस्टम, सो ऑल द लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड, ऑल द पीडीएफ नोट्स आर रिकॉर्डेड। आपको देखना हो कि क्या बताया तो तुरंत आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं, तो ये सब चीजें रहती हैं। यस सर। बिल्कुल एकदम। नक्षत्र, योर व्यूज कुछ आप बताइए, व्हाई वन शुड टेक एडमिशन हियर? सर डिसिप्लिन काफ़ी सही है डिसिप्लिन, दैट्स नंबर 1, दैट्स वेरी गुड। यस, सर, फैकल्टी अच्छी है, फ्रेंडली फैकल्टी है। फ्रेंडली फैकल्टी, ऐसा तो नहीं आप डाउट्स पूछते हैं आपको फटकार लग जाती है? पर्सनली क्यों, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो कभी ऐसा नहीं करता। नो सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो सर। मतलब जैसे आपके पेरेंट्स आपको बेटे ट्रीट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं आपको। हाँ सर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट अदर सिस्टम जो है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स है सर, और एयर कंडीशनर्स है,
क्लासरूम कंप्लीट में। जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है। यस सर। अक्षिनी, अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करता हूँ। देखो बेटे, ये तो एक फैक्ट है, एज वी नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन कोटा, नो एवरी टाइम वी गेट अ सैड न्यूज अबाउट सुसाइड एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कहीं ना कहीं एक दिमाग पे प्रेशर रहता है स्टूडेंट के। तो अक्षिनी, आप बताओ भी हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रेशर, एक जैसे बर्डन काइंड ऑफ कि भाई ये एग्जाम है वो एग्जाम है, तो कैसे डील करें इसको? सो पर्सनली लाइक ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि लाइक आप इनएविटेबली भी मतलब ना चाहते हुए भी बहुत रहता है प्रेशर, ना चाहते हुए भी ये हो जाता है, स्ट्रेस आपको मिलता है। बट इसमें आपको मेन चीज़ यही सोच के चलनी पड़ती है कि लाइक आप 11th-12th में ये कर रहे हो तो आपका मेन गोल सिर्फ नीट या जेई क्रैक करना नहीं है। करेक्ट करेक्ट। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ना आपके पेरेंट्स को आप उनका सोच के चलो कि अगर आप इतने प्रेशर में रहोगे, दैट्स यू नो, आपके लिए जो आपके भगवान है, आपके गॉड है, आपके वही। पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या है वो इनफैक्ट उसको वर्ड्स में हम बता नहीं सकते हैं। वही सर लाइक तो बिफोर यू टेक एनी डिसीजन आपको सोचना चाहिए पेरेंट्स के बारे में। कोई सजेशन आप देना चाहेंगे कि भाई इसके क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? फिर सर इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मेंटली आप जितना स्ट्रांग रहेंगे उतना ही इसमें आप बेहतर निकल पाएंगे। बहुत ज़्यादा बर्डन किसी चीज़ का नहीं लेना होता है अपने को, अपने बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, पर ऐसा बेटे होना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ आपको एक ही बार मिलती है। कोई भी डिसीजन लो उसके कई एस्पेक्ट देखो ना कैसे। मित्तल, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस? वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। सर पढ़ाई तो होती रहती है, थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए। पढ़ाई होती रहती है, थोड़ा घूमना फिरना भी होना चाहिए, ठीक है। तो पर मित्तल बेटे, तो आपका +2 क्लास है ना, तो दिस इज द लास्ट क्लास। आई थिंक कोविड में अच्छा खासा टाइम आपको मिल गया था, छुट्टियां वगैरह बढ़िया से। यस सर। क्यों कपिल, इससे ज्यादा भी टाइम चाहिए था? आई थिंक फिर तो घूमना फिरना तो होता रहेगा। पढ़ाई कितनी चाहिए? पढ़ाई नीट के एग्जाम के लिए 6 to 8 आवर्स तो स्टडी डेली करनी चाहिए। मिनिमम यस। तो इतनी स्टडी आप करेंगे, क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे। देखो क्लास नोट्स की मैं अगर बात करूं तो जैसे पार्थ, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि भाई क्लास नोट्स, मुझे लगता है कि जैसे मैं आई एम टीचिंग यू फिजिक्स, तो मुझे मेरे क्लास नोट्स कंप्लीट है। मुझे लगता है कि इफ यू जस्ट गो एंड जस्ट यू नो कोई भी मेमोराइज कर लो Yes, या sir. उसको जस्ट रीड आउट द टॉपिक्स, Yes, तो मुझे sir. लगता है कि दैट्स परफेक्ट। यस सर। क्योंकि आपको आई थिंक PYQs भी करवाए जाते हैं क्लास में, यस सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई एंड नीट। यस सर, सारे PYQs सो इंक्लूडेड PYQs होते हैं कैसे सर हेल्पफुल नोट्स में। रहते हैं आपको? सर सारे के सारे PYQs सर टीचर्स कराते हैं, रिस्पेक्टिव टीचर्स, जो नोट्स में एक्चुअली कंसाइज रहते हैं, एक कंसाइज वे में सारे के सारे PYQs रहते हैं एक साथ, सारे के सारे नोट्स एक साथ होते हैं, जिससे अगर हम कभी भी नोट्स खोल के देखें रैंडमली तो हमको है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे अगर से वो हमको कोई notes सा भी आपको अच्छा समझ रिवीजन में करना हो आते तो हैं। अच्छा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा हमारा। ओके, पूजा, आपसे पूछना चाहूंगा बेटे, मॉड्यूल्स क्या कहना चाहते हैं? मॉड्यूल्स आपके लिए कंप्लीट फिनिशिंग नोट्स हैं वो मॉड्यूल्स? यस सर, मॉड्यूल्स में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं और वो वापस रिपीट भी हो रहे होते हैं। जैसे लेटेस्ट अभी अपने जेई हुआ था तो उसके अंदर जेई के क्वेश्चंस थे, वो PYQ से कुछ मैच कर रहे हाँ, जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपके जेई के एग्जाम में आए थे। यस तो सर। ये एक एडवांटेज रहता है मॉड्यूल में। उसके अलावा आपके पास में आई थिंक अलग से एक्सरसाइज भी उसके अंदर रहती है, Yes, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो एक कंप्लीट सिस्टम इसके अंदर रहता है। लक्ष्य, मैक्सिमम 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं एक ही चैप्टर के। सो दैट्स काइंड ऑफ यू कैन से लाइक 100% हो जाता है। यस। लक्ष्य, तो आप पहले ये बताइए लक्ष्य, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ सर। बढ़िया फील कर रहे हैं एकदम। यस सर। तो अगर आपको कैमरे में देख के सजेस्ट करना हो कि भाई क्यों एडमिशन यहाँ लेना चाहिए, फ्यू वर्ड्स। सर मेंटरशिप सर, मतलब जो अगर और इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखे सर तो सर वहाँ पे बच्चे बल्क में सर, तो टीचर स्टूडेंट रेशियो जो Yes, है sir. यहाँ पे, हाँ, तो सर बच्चों पे इतना एक बच्चे पे सर मेंटरशिप नहीं हो पाती है नहीं हो पाती है सर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो टीचर है सर, एक बच्चे को अच्छे से जानते हैं सर, उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ। पर्सनल केयर आपको Yes, मिल sir. जाती है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि भाई मैंने सीकर के कई बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा है और मैंने देखा है कि वहाँ पे जैसे अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अगर होते हैं तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ टीचर टू यू नो, इनफैक्ट कि सबका नाम याद रखना एक बड़ी बात हो जाती है इसमें। तो बहुत से स्टूडेंट्स को पर्सनल केयर नहीं मिल पाती है और धीमे धीमे दैट लीड्स दैट स्टूडेंट टू स्ट्रेस, और यही स्ट्रेस जो है ये आगे बहुत बड़ी एक इशू बनता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए सबसे बेस्ट टास्क रहता है। एंड आई थिंक वी आर डूइंग गुड हियर कि हमारा जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है ये बहुत बढ़िया है। हम लोग पर्सनल केयर इस पे आप लोग के कर सकते हैं। तो अब मैं लास्ट बिल्कुल इसको फिनिश करने वाला हूँ। तो मुझे आप ये बताइए कि भाई जेई के जो स्टूडेंट्स हैं कितने परसेंटाइल आप लोग लाने वाले हैं इस बार? तो मैं श्योर कर दूं कि आप लोग मिनिमम पहले तो मेंस एंड देन उसके बाद में एडवांस। कपिल, कुछ कहना चाहते हो तुम? सर मिनिमम 95 परसेंटाइल।
95 मिनिमम, बट अपने को चाहिए 100% Yes, टाइम, sir. क्योंकि देखिए सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 100% ला के दिखाऊंगा आपको। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगे। Yes, sir. मेहनती स्टूडेंट्स हो, और जो हमारे नीट के स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग हमें जल्दी हमें नजर आए कि भाई आप मेडिकल कॉलेज में हैं, उसके लिए आप बढ़िया से एकदम मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपसे दोबारा मुलाकात हम लोग करेंगे किसी और वीडियो में। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कर दो वहाँ पे बेटे। थैंक यू।